السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ امید کر رہا ہوں خیریت ہوں گے سب کے سب۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا فیل چل رہا تھا جی، اور وہ بھی فیل چل رہا تھا تو فیل ماضی چل رہا تھا، اور فیل ماضی کے ساتھ جملہ فعلیہ بھی ہمارا چل رہا تھا۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی شروعات کسی فعل کے ساتھ ہو، اور جس فعل کے ساتھ شروعات ہو وہ فعل ماضی ہو تو وہ جملہ ماضی فعل کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جملہ فعلیہ ماضی والا جملہ کہلائے گا۔ اس تعلق سے ہم نے کیا پڑھا، فعل کے تعلق سے بھی کیا پڑھا، اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث کا کچھ ٹکڑا میں انشاءاللہ بورڈ پر لکھوں تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں میں توڑ توڑ کر نکلا ہوں، انشاءاللہ کوشش کرے ایک ایک حرف کو پہچاننے کی۔ من کا معنی جو آتا ہے کوئی بھی ایک، کسی بھی ایک شخص کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہوتا۔ من قرأ، لفظ قرأ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرأ کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ تھوڑا بہت جو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، مائک آن کرے کوئی ایک بندہ، ایک بندی۔ پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی قرأ، یہ پھر اس کا اس نے پڑھا، تو من قرأ کا مطلب ہوتا ہے جس نے پڑھا۔ قرأ کا مطلب ہوتا ہے کوئی پڑھا، اس نے پڑھا، لیکن جب من لگ جائے شروع میں تو وہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ تو من قرأ جس نے پڑھا، کیا پڑھا جی؟ حرفن، ایک حرف، کوئی ایک حرف۔ من قرأ حرفن، یہاں تک ٹرانسلیشن کرنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری؟ کوئی بتائے گا یہ نصب میں کیوں آیا میرے سامنے؟ یہ حرفن نصب میں کیوں آیا، کوئی بتائے گا مجھے؟ کوشش کرے کیوں آ رہا، بتائے۔ کوئی مائک نہیں آن کر رہا، کیا مسئلہ ہے؟ آواز پہنچ رہی نا تب تک آپ لوگ تک؟ حرف، ہاں حرف کیوں آ رہا ہے، حرف کیوں آ رہا ہے نصب میں، یہ وضاحت کریں۔ قرأ فعل ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے ہوا کی ضمیر میں، تو فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول آتا ہے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، لہذا حالت نصب میں نظر آ رہا ہے۔ حرفن مفعول ہے، حرفن مفعول ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا من قرأ حرفن، جس نے پڑھا کوئی ایک حرف۔ کیا پڑھا جی؟ من کتاب اللہ، کیا معنی ہے جی من کتاب اللہ کا معنی؟ کو ترجمہ کرے، اور اس کو گرامیٹیکلی انالائز کون کرے گا؟ من کتاب اللہ پڑھا ہے ہم نے یہ لفظ، یہ مرکب پڑھا ہے ہم نے کہیں؟ پڑھا ہے۔ کیا مرکب، کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری میں اگر من ہٹا دیا جائے تو پھر یہ کیا رہ جائے گا؟ یہ کتاب اللہ ہوگا۔ اور کتاب اللہ، کتاب حالت جر میں کیوں ہے جی؟ حالت جر میں کتاب کیوں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ من کی وجہ سے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر لگا ہوا ہے، حرف جر لگا ہوا ہے۔ تو من کتاب اللہ، کتاب اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ کتاب اللہ کا معنی صرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کے شروع میں من لگ گیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ من کتاب اللہ کا معنی یا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب سے۔ اب آپ اس کا ترجمہ مکمل کریں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اگر کسی نے پڑھا، یا پھر ہم اس کا نارمل ترجمہ کریں، جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے، اللہ کی کتاب میں سے،
تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلہو کا ترجمہ بنا ہے، فا پھر کے معنی میں آتا ہے، فا پھر کے معنی میں آتا ہے، لہو کا معنی کیا ہوا جی؟ اس کے لیے، فلہو بھی، بھی کا معنی جی اس کے ساتھ، حسنتن، حسنتن کا مطلب ہوتا ہے ایک اجر، اجر ہوتا ہے، اجر یعنی نیکی کے معنی میں آتا ہے، تو اس کے لیے ہے ایک اجر، ایک منٹ رکیں، اس کے لیے ہے ایک اجر۔ اور پھر آگے جو الفاظ موجود ہے وہ گرامیٹیکل انالائز آپ لوگ نہیں کر پائیں کیونکہ ہم نے پڑھایا نہیں، میں اس کو وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد جو الفاظ موجود ہے والحسنۃ، اور وہ ایک نیکی، وہ ایک نیکی، بعشر امثالھا، اور اس کے جیسے 10 گنا، 10 گنا برابر نیکی اس کے لیے لکھی جائے گی، یعنی وہ ایک حرف جو ہے وہ 10 گنا نیکی کے تعلق اس کا رکھتا ہے، یعنی ایک حرف جو اگر کوئی قرآن کا پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول، اقولو کیا ہے جی؟ فعل مضارع ہم بعد میں پڑھیں گے، میں نہیں کہتا، لا اقولو، اتنا کم سے کم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، لا اقولو الف لام میم حرفن، کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن اقول، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف حرفن، میم حرفن اور لام حرفن، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جو الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف لام میم پر کتنی نیکی ملی جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق؟ 30 نیکی ملی، یعنی ایک حرف اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حرف پہ 10 نیکی ملے گی ہمیں، اور اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف لام میم پڑھنے کے ساتھ ہی ہمیں 30 نیکی الحمدللہ لکھ دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں الحمدللہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو ہم نے کچھ پڑھا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تھوڑا بہت ترجمہ آگے جا کر کے جب ہم اس کو کریں گے، جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے جس کو مکمل آپ کر پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آتے ہیں جو ہمارا کلاس ہے اس کی طرف چلتے فٹافٹ۔ ایک ہی لوگ نہ بولے، کوشش کرے کسی سے بھی کوشش کر پائے تو کوشش کرے بولنے کی، ٹھیک ہے نا؟ غلط ہی بولے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بندہ تو فعل کے تعلق سے ہم نے کیا پڑھا جی؟ ہم نے فعل میں یہ پڑھا تھا کہ فعل میں سب سے پہلے کم از کم جو اجزاء ہوں گے وہ 2 اجزاء ہوں گے جی، کون کون سے ہوں گے جی؟ فعل اور فاعل کا ہونا لازم ہے جی ہمارے اندر، فعل اور فاعل ہوا، فاعل ہونا ہی ہونا، یہ 2 اجزاء ہونا ہی ہونا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوں گے، یہ ہونا ہی ہونا، اس کا لازم ہونا ہے۔ فاعل کی اعرابی حالت جو ہے کیا ہے جی؟ رفع ہے، ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، اور فاعل کی 2 صورتیں ہم نے پڑھی ہے، وہ ایک صورت یہ تھی کہ وہ فاعل کبھی ظاہر کی صورت میں نظر آئے گا یا کبھی ضمیر کی صورت میں نظر آئے گا جی، یہ 2 صورتوں میں نظر آئے گا۔ ایک ہم نے ایڈیشنل ایک جب پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول ہمارے سامنے ایک نیا چیز آیا جی، جس کی اعرابی حالت نصب میں تھی، جس کی ایک صورت ہم نے اس دن پڑھی تھی وہ تھی ظاہر۔ آج جو ہم پڑھیں گے، جو سیکھیں گے، وہ ضمیر کی صورت ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اب تک پڑھا ہے جی فعل کے تعلق سے، ہم نے اب تک جو نالج گین کیا ہے فعل کے تعلق سے وہ یہی فعل ہے کہ فعل ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کم از کم فعل کے 2 اجزاء ہوں گے، فعل ماضی کے 2 اجزاء ہوں گے، ایک فعل ہوگا دوسرا فاعل ہوگا، پنکھا کم ہوا نہیں لگ رہا، ایک طرح سے فعل ہوگا دوسرا فاعل ہوگا، فاعل کی اعرابی شکل رفع ہوگی ہمیشہ، اور وہ 2 صورتوں میں نظر آ سکتا ہے فاعل ہمیں، جملہ فعلیہ کے اندر فاعل ہمیں 2 طریقے سے نظر آئے گا، یا تو وہ ظاہر نظر آئے گا یا تو وہ ضمیر کی صورت میں نظر آئے گا ہمارے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفعول کسے کہتے ہیں جی؟ جس پر کوئی فعل واقع ہو رہے ہو، جس پر کوئی فعل واقع ہو رہا ہوگا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ زید نے مارا، اب مارنے کا کام زید کر رہا ہے لیکن کس کو مار رہا ہے؟ احمد کو مار رہا ہے، تو احمد جس پر فعل واقع ہو رہا ہے یعنی مارنے کا کام جس پر ہو رہا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے، تو اس کو کہیں گے مفعول، اور وہ حالت نصب میں ہوگا۔ لاسٹ کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا مفعول ہمارے پاس ظاہر کی صورت میں آتا، ناؤن کی صورت میں آتا ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے تھوڑا بہت وہ پڑھیں گے ضمیر کی صورت میں، جب ہمارے سامنے فعل جملہ فعلیہ کے اندر ہے اور جملہ فعلیہ ماضی کے اندر ہے
تو وہ کس طرح سے نظر آئے گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بات بتا دوں کہ مفعول کے اعتبار سے فعل ماضی کے دو قسم ہوں گے جی. مفعول کے اعتبار سے فعل ماضی کے دو قسم ہوں گے, وہ لکھ لیں فٹافٹ, نوٹ کر لیں. ایک وہ افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے جی, وہ افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے ان کو کہتے ہیں متعدی افعال. ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے افعال کو کہیں گے متعدی افعال. مثال ضربہ ایک فعل ہے جی, نصرہ بھی ایک فعل ہے جی, ٹھیک ہے. یہ دونوں فعل ہے, ایک کام ہے, لیکن یہ کام جو ہے ضربہ, یہ ایسا کام ہے کہ اس کے لیے ایک مفعول کی ضرورت پڑے گی. مثال میں اگر کسی کو مار رہا ہوں تو ظاہر بات ہے میں اپنے آپ کو تو نہیں ماروں گا فی الوقت, تو میں جس کو ماروں گا, جس پر فعل واقع ہوگی, تو مجھے ایک مفعول کی ضرورت پڑے گی. چاہے میں دیوار پہ ماروں, چاہے میں لڑکے کو ماروں, چاہے میں کسی کو بھی ماروں, ویسے مارتا نہیں ہوں, بتا رہا ہوں بس خالی کہ ماروں گا, لیکن مارنے کے لیے کم از کم مجھے ایک مفعول کی ضرورت پڑے گی. تو اسی طریقے سے ایسے افعال, دیکھیں نصرہ جو ہے نا مدد کرنا, مدد بھی ایک ایسا فعل ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آواز کٹ رہی ہے عادل بھائی آپ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نیٹ ورک میں آ جائیں. نصرہ بھی وہ فعل ہے جس کو میں مدد کر رہا ہوں, تو ظاہر بات ہے میں کسی کی مدد کر رہا ہوں, میں انسان کی مدد کر رہا ہوں, لڑکے کی مدد کر رہا ہوں, بچے کی مدد کر رہا ہوں, جانور کی مدد کر رہا ہوں. تو ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑے, ذہن میں ڈال لو اس کو, ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے افعال کو کہیں گے متعدی افعال. اور وہ افعال جنہیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی, انہیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اسے کہتے ہیں فعل لازم. لازم افعال. مثال دیتا ہوں آپ کو, ذہبہ ایک فعل ہے جی, جانا کے معنی میں آتا ہے. دخلہ ایک فعل ہے جی, داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے. میں گیا, تو جانے کا جو کام ہو رہا ہے مجھ پر ہی ہو رہا ہے, مجھے کسی الگ سے کوئی فعل کا ذکر کرنے کی. دیکھیں یہاں ایک کنفیوژن آپ کا یہ ہو سکتا ہے, ذہن میں آ سکتا ہے آپ کا, کہ میں گیا, کمرے سے گیا, تو کمرہ مفعول بن سکتا ہے, مفعول بنے گا, لیکن وہ فعل اس پر واقع نہیں ہو رہا ہے. فعل جو ہو رہا ہے نا, فعل کا اثر مجھ پر ہی ہو رہا ہے. جانا جو مصدر ہے نا, وہ جانا مجھ پر ہی ہو رہا ہے, میں ہی جا رہا ہوں نا, اور میں ہی داخل ہو رہا ہوں نا. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, متعدی افعال اور فعل لازم. اس کو بعد میں کبھی انشاءاللہ پڑھیں گے اگر چھٹی وقت رہا تو ہم, لیکن بس میں آپ کو اوپر ہی بتا دوں کہ بس اتنا کنفیوژن دور رکھ لے کہ جو فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہونا لازم ہو رہا ہوگا, تو ایسے کو کہیں گے متعدی افعال. اور ایسے افعال جس کا اثر خود پر ہو رہا ہوگا, فاعل کے اوپر ہو رہا ہوگا, تو ایسے افعال کو فعل لازم کہیں گے, فعل لازم کہیں گے. لہذا مفعول کے اعتبار سے فعل ماضی کی دو اقسام ہوں گے جی, ایک متعدی افعال جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, دوسرا فعل لازم جن کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. تھوڑا پانی لا کے دیجیے گا سبھی نا, بہت گرمی لگ رہا ہے یار, کلکتہ میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ چھٹی میں ٹھنڈا. سمجھ میں آیا یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال؟ دیکھیں میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں واپس انشاءاللہ. مفعول کے اعتبار سے, مفعول کسے کہتے ہیں شاہل آپ بھی بتائیں فٹافٹ. مفعول تو میں نے پچھلے کلاس میں پڑھایا تھا, مفعول کسے کہتے ہیں, کوئی بتاؤ ان کو مفعول بتاؤ, کوئی بتائے گا مفعول کا تعارف کرائے. کون جواب دے گا ان کو؟ کرتا ہے کام, جو کر رہا کام. اور ایک چیز, ہاں, جس پر فعل واقع ہو رہا ہے, جس پر فعل واقع ہو رہا ہے, جس پر فعل واقع, اس کو انگلش میں آبجیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ, جس پر فعل واقع ہو رہا ہے اس کو کہیں گے مفعول. تو مفعول کے اعتبار سے فعل ماضی میں دو اقسام ملیں گے جی آپ کو. ایک متعدی افعال, فعل کی جمع افعال ہے, وہ افعال
जिसको मफूल की जरूरत पड़ेगी लाजिम, जिसको मफूल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसे अफआल को कहेंगे मुतअद्दी अफआल। जैसे मिसाल के तौर पर दरबा, मारना, मारना एक फेल है, तो जो मार रहा है कि तो किसी को मार ही रहा होगा, जाहिर बात है किसी ने किसी को मार रहा हो, तो मारने का असर किसी पर हो रहा है, मारने का असर किसी पर हो रहा है, तो ऐसे अफआल को मुतअद्दी अफआल कहेंगे जिसको मफूल की जरूरत पड़ेगी। और लाजिम अफआल उसे कहेंगे जिस फेल का असर फाइल पर ही हो। जैसे जाना, जा रहा हूं तो मैं ही जा रहा हूं ना, अगरचे मफूल बनकर कुछ ना कुछ आएगा, जैसे दरवाजे से जा रहा हूं, घर से जा रहा हूं, मस्जिद से जा रहा हूं, फाइल बनकर आएगा, लेकिन फेल के असर क्या हो रहा है, फेल का असर किस पर हो रहा है, मुझ पर ही हो रहा है, फाइल के ऊपर ही हो रहा है। जैसे दाखिल होना, बाहर निकलना, ये तमाम चीज मुझ पर हो रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन आएंगे ऑब्जेक्ट बन करके, ऑब्जेक्ट बन करके भी आएंगे, यानी फाइल बन करके भी आएंगे, मफूल बन करके भी आएंगे, लेकिन वो फेले लाजिम नहीं होगा, वो फेले मुतअद्दी ही क्या, सॉरी, वो फेले मुतअद्दी नहीं होगा, फेले लाजिम होगा। ये एक अलग से टॉपिक इंशाल्लाह इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आते हैं, इसको बस ध्यान में रख लें कि दो तरह के होंगे जी। अच्छा, अब हमने और क्या पढ़ा था उस दिन, हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा फाइल जमीर की सूरत में हो तो हम 14 की 14 गर्दान इस्तेमाल कर सकते हैं जी, 1 से लेकर के 14 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा फाइल जाहिर हो जाए, जाहिर हमारा फाइल जाहिर हो जाए, तो क्या करेंगे जी, कौन कौन सा गर्दान यूज करेंगे जी, सेगा नंबर 1 या सेगा नंबर 1 और 4। 1 का भी इस्तेमाल करेंगे जब हमारा फाइल मुज़क्कर हो, 4 का भी इस्तेमाल करेंगे जब हमारा फाइल मुअन्नस हो। ये जो कायदा है ना, ये कायदा एक जहन में रख ले, ये फेले माजी के साथ भी होगा और फेले मुदारे दोनों के साथ होगा जी। ये कायदा फेले माजी और फेले मुदारे दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। अगर हमारा फाइल जाहिर होगा तो या तो सीगा नंबर 1 या तो सीगा नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे, या जमीर में होगा तो 1 से 4 तक इस्तेमाल करेंगे, 1 से 14 तक इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू जमीर। अच्छा, अब ये तमाम चीजें हमारे पास आ गई, मैं अब इसको मिटाता हूं, मैं कुछ जुमला लिखता हूं, जुमला फेलिया लिखता हूं, अब उसका तर्जुमा करने की कोशिश करें, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम तुम्हारा चलेंगे उसमें तरफ, क्योंकि उसमें जरूरत है। मैं एक जुमला लिख रहा हूं, इसका तर्जुमा करें, कौन करेगा बताएं, कौन करेगा जी, तर्जुमा बताएं, तर्जुमा करें जी, क्या जी, नसरा का माना क्या है जी, कोई तर्जुमा करे फटाफट। नसरा का तर्जुमा करे, कौन किया, रोशन अभी आपकी आवाज ही नहीं आ रही, तर्जुमा कौन करेगा, आसान है, इसका इस्तेमाल मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी किया रहा, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, अभी उसने मदद की, नसरा मदद करने के ताल्लुक से आता है, नसरा का मतलब हुआ उसने मदद की, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तर्जुमा करें जी, नसरा ज़ैदुन, जैद ने मदद की, माशाअल्लाह। नसरा ज़ैदन, मदद, इसका तर्जुमा करें जी, उसने मदद की जैद की, पक्की बात है, पक्का लॉक कर दें, चले माशाल्लाह सही बताया आपने जी। लो जी, एतराज होगी आपके ऊपर, अब बताए कहां पर आ गया, अब आप भी बताए कहां पर आया, वहां जी बताए, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही जी, नहीं रोशन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नसरा ज़ैदन जी, सानिया ने कहा कि उसने जैद की मदद की, हाँ चल, अब देखे कंफ्यूजन आपको कहां हो रही है, बस यही कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं आपको। नसरा के अंदर मैंने बताया था आपको कि जाहिर हो नजर आ रहा है, आपको आपको जो गलती नजर आ रही है वो जैद नजर आ रहा है, जैद तो जाहिर नजर आ रहा है ना जी, इसीलिए आपने बोला कि वो कैसे मदद कर रहा है, जैद मदद कर रहा है ना, हाँ ये वो नसरा में आ गया ना। नसरा का तर्जुमा भी क्या किया आपने, हाँ, नसरा का मतलब हुआ उसने मदद की, तो नसरा के अंदर फाइल छिपा हुआ है हुआ की सूरत पर, नसरा के अंदर हुआ की सूरत में फाइल छिपा हुआ, यहां जाहिर था हमारे पास, क्यों, क्योंकि जैद हालत रफा में था, और रफा ये बयान कर रहा है कि ये फाइल है, और जैद अब यहां नसब में नजर आ रहा है, लिहाजा अब हमें जैद मफऊल नजर आ रहा है, तो फाइल लाजिम फेल के अंदर होगा, लाजिम, यही चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना अभी आपको, मैं और कुछ जुमला लिख रहा हूं जी।
नसरा ज़ैदन, तर्जुमा करें जी। जबरदस्त, ये बहुत खुशी हुई आपकी जुबान से सुन करके, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई। मतलब मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, ये इस चीज की खुशी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। जबरदस्त। मायके जाने के बाद इंसान बहुत कुछ भूल जाता है जी। तर्जुमा करें जी इसका, नसरू ज़ैदन, उन सब ने जैद की मदद की। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं आप कह रहा हूं कि इसका तर्जुमा करें जी। नहीं नहीं, देख लेना, गौर करें थोड़ा। जी, नसर तो इब्राहिम हूं, पक्की बात है। क्यों जी, इब्राहिमा क्यों आएगा? हाँ, रफा में है ना। हाँ, ये जुमला ही गलत है, ये जुमला ही गलत है। क्यों जुमला गलत है? क्योंकि फाइल जब हमारा एक और चार हट जाए, ये जहन में डाल लें आप लोग, जब फेल का गर्दान नंबर एक, सीगा नंबर एक या सीगा नंबर चार के अलावा कोई भी गर्दान है, कोई भी सीगा है, कंफर्म्ड हो जाओ फाइल उसके अंदर मौजूद है, फिर मफू फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है बाहर में। लिहाजा जब मैंने इब्राहिमों को नसब में रफा में लिखा ना, ये गलत लिखा, ये कभी फाइल बन ही नहीं सकता। क्यों? नसरतु में तो फाइल ऑलरेडी मैं आ ही गया हूं, ठीक है ना। तो ये होगा इब्राहिमा। तो अब जब अर्थ मैं बता रहा हूं, आप सीगा नंबर एक और सीगा नंबर चार के अलावा कोई भी सीगा आ जाए, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, ये तमाम सीगे के अंदर सीगा नंबर एक यानी नसरा या नसरत, इन दो के अलावा बाकी 12 गर्दान आ जाए, 12 सीगा आ जाए, तो बाहर फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं है। इंक्लूडेड है कि उसके अंदर फाइल जमीर की सूरत में होगी। तो नसरतू एकदम लास्ट वाला आ रहा ना जी, 13 नंबर वाला, मैंने मदद की। तो नसरतू जब आ गई, इसका मतलब इसमें फाइल मौजूद है, तो फिर मैं इब्राहिम को फाइल और नहीं बना सकता। हाँ, ऐन मुमकिन यह है कि मैं और इब्राहिम मदद कर रहे हैं, मैं और इब्राहिम मदद कर रहे हैं, तो यहां वाव की जमीर लगी होगी, वाव वाव एडिशनल लगा रहता है, लेकिन वाव वाव नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये हो सकता था, लेकिन चूंकि यहां पर मैंने वाव एडिशनल नहीं डाला था, लिहाजा इब्राहिम में लिखना मेरी गलत हो जाएगी। अब तर्जुमा करे जी, क्या इसका तर्जुमा होगा? नसर तो इब्राहिमा, मैंने इब्राहिम की मदद की, ये समझ। हाँ, ये कंफ्यूजन को क्लियर करना था, ये कंफ्यूजन क्लियर करना था जी। अब मैं लिख रहा हूं जी, नसरती ओसामा था, तर्जुमा करे जी। बताया, तर्जुमा करें। नसरती ओसामा था, गलत। नसरती, हाँ, नसरती, नसर ता तू था, ता तू था, तू मैं था, तो ता तू था, तो ता ती जो था वो तू थी, तो नसरती, हाँ, ता तू था, तू मैं था, मैं बता रहा हूं, ता तू था तो तू मैं था, तो ती थी, ते थी, तो नसरती जो है, तू मुअन्नस ने मदद की ओसामा की, तूने मदद की, यानी तूने का जिसका जिक्र हो रहा है, जिससे मैं मुखातिब हूं, वो लड़की है, मुअन्नस है, नसरती, तूने मदद की ओसामा की। क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। गौर करें थोड़ा, नसरत उस्माना, उस मुअन्नस ने मदद की उस्मान की। अच्छा, अब मैं अगर इसको उस्मानू कर दूं, क्या जुमला सही है? गलत क्यों है जी? क्यों? क्योंकि हमारा फाइल, अगर हम, हाँ, जब हमारा फाइल मुजक्कर है तो हम फेल के सीगा नंबर एक इस्तेमाल करते हैं, यहां सीगा नंबर चार इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये कभी भी फाइल बनकर के नहीं आएगा, ये हमेशा मफूल ही बनकर आएगा। लिहाजा
नसरत उस्माना। ये था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सीखना था और जो हमारे जहनों में बैठाना था। अब हम आते थोड़ा सा इसको थोड़ा और फैलाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। यहीं पे लिखता हूं मैं इंशाल्लाह जी। जुमला दे रहा हूं मैं, आप उसका तर्जुमा करें। मैं उम्मीद करता हूं तर्जुमा कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वो होमवर्क दिया था, जिसको होमवर्क कर लिया वो कर देगा। सानिया के अलावा कोई और तर्जुमा करे। मैं कहता हूं कि अल्लाह ने वादा किया मुसलमानों से, अल्लाह ने वादा किया मुसलमानों से। करे कोई करे, दूसरा कोई करे। वादल्लाही, पक्की बात है, सही है जी, सही बात है, सही है या गलत है? गलत है। जर में क्यों आएगा? अल्लाह ने वादा किया ना, तो वादा करने वाला कौन है? अल्लाह। तो फाइल आएगा, और फाइल हमेशा रफा में होता है, तो होगा वादल्लाहु। वादल्लाहु, मुसलमानों से वादा किया, मुसलमानों से वादा किया। फाइल बना लिया, मफूल बना लिया, मफूल बनाए जी। नहीं, गलत। मिन मुस्लिमीना भी नहीं आएगा, वो मफूल डायरेक्ट है। वादल्लाहुल मुस्लिमीना, क्यों जी मुस्लिमीना क्यों है जी? बताए, कोई बताए, बताए। वादल्लाहुल मुस्लिमीना नसब में आ रहा है, किसका नसब है जी? अल मुस्लिमूना का। अल मुस्लिमूना का हालत नसब, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। वादल्लाहुल मुस्लिमीना। अच्छा, अल्लाह ने जब मुसलमानों से वादा किया, तो मुसलमानों ने भी तो अल्लाह से कुछ वादा किया होगा। मैंने तर्जुमा करे जी। मुसलमानों ने अल्लाह से वादा किया जी। वादा, उसने वादा किया, फाइल को, फाइल किया जी मुस्लिमूना। वादल मुस्लिमूना, अल्लाह ही। हाँ, वादल मुस्लिमून अल्लाह, वादल मुस्लिमून अल्लाह मिलाकर पढ़ेंगे तो वादल मुस्लिमून अल्लाह। मुसलमानों ने अल्लाह से वादा किया जी। क्या वादा किया था जी? इबादत का तो किया जबरदस्ती। और सबसे पहला वादा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इबादत का जब जिक्र किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, ला तुशरिक बिही, और उसके साथ शिरक ना करो। तो वादा अल्लाह से जो हमने करना है, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, वो अल्लाह की इबादत तो करनी है, लेकिन शिरक के बगैर। इसका मतलब ये समझ में आया कि बाज लोग अल्लाह की इबादत तो करेंगे, लेकिन शिरक के साथ। लेकिन अल्लाह ने यहां वजाहत किया कि अल्लाह ने कहा कि उबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिक बिही शैअन, किसी भी चीज को अल्लाह के साथ शिरक ना करो। यानी अल्लाह का इबादत तो करना, लेकिन किस तरह से करना जी? शिरक के साथ, शिरक से महफूज होकर के इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी। कुरान मजीद में एक आयत है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, इसका तर्जुमा कौन कर बताएगा? दाऊद ने, हाँ करें, आप करें। कतला दाऊदू, अब यहां पे गौर फिक्र करें कि अरबी कितनी फसी और बलीग जुबान है। अगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी ने जानबूझ करके कतला दाऊद को नसब में पढ़ दिया और जालूत को रफा में पढ़ दिया, तो पूरा माना बदल जाएगा। यहां माना हो रहा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया, लेकिन अगर पेश और जबर का फर्क कर दें, अगर हम पेश और जबर का फर्क कर दे, तो आप खुद तसव्वुर करें कि क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर आता है, कि कुरान के एराब को सही तरीके से पढ़ा करो, कुरान के एराब को सही तरीके से पढ़ा करो। अगर एराब आपने गलती की, पूरा माना तब्दील हो जाएगा, कुफ्र तक चली जाएगी ये बात। अगर किसी ने गलती से पढ़ दी, अल्लाह वालम, वो अलग मसला है, लेकिन किसी ने जानबूझकर पढ़ा तो वो कुफ्र तक जाएगा वो, ठीक है ना। तो पेश और जबर का फर्क देखिए कितना खतरनाक है। अगर किसी ने दाऊद को नसब में पढ़ दिया और जालूद को रफा में पढ़ दिया, तो वह खत्म किस्सा, ठीक है ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा। और एक जुमला लास्ट में लिखता हूं, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मैं कहता हूं,
क्या हो रहा है जी, क्या लिखा हुआ है जी, ज़रबल वालिदानी अल वलदैनी, कौन तर्जुमा करेगा जिसका? हाँ जी बोले। माशाल्लाह। अब बाज लोगों की खता यह है कि बाज लोग रफा को पेश को रफा समझते हैं, जबर को नसब समझते हैं और जर को जेर समझते हैं। जो ये समझते हैं, क्या इसको कभी हालत रफा में मानने के लिए तैयार होंगे? कभी नहीं। आ रही है, अभी आ रही है। मैं अच्छा इसको, मैं हूं ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा, रीजॉइन करें वापस से, शायद रीजॉइन करें, रीजॉइन करें वापस से। जो रफा को पेश को रफा समझते थे, वो कभी जिंदगी में इसको रफा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। गलती यहीं पे करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की खता ये है कि बेसिक वो लोग क्या करते हैं, एराब में गलती ये करते हैं कि एराब पेश जबर जेर पेश को एराब समझ बैठते हैं, जबकि जबर जेर पेश एराब कभी नहीं है, ठीक है ना। तो जो वो जबर जेर पेश को एराब समझते हैं, तो कोई इसको रफा में मानने के लिए तैयार नहीं है और इसको कोई नसब में मानने के लिए तैयार नहीं होगा। दोनों को जर में मानने के लिए तैयार होंगे, बोले दोनों तो जेर नजर आते, दोनों जर में है, तो जुमला ही गलत है। तो ये गलती जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूं नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने इसी चीज को ज्यादा फोकस किया है कि जबर जेर पेश को एराब नहीं समझना है। इंशाल्लाह जबर जेर पेश को अगर एराब समझेंगे तो हम बहुत बड़ी खता करेंगे, पूरी अरबी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर जबर जेर पेश को हमने एराब समझ लिया तो। ठीक है, अब चलते हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला जो आखिरी हमारा क्लास है उसके तरफ। आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क इश्यू है आपकी जी। अब हमने जो उस दिन अभी शुरू में मैंने बताया कि जो हमारा मफऊल था, मफऊल हमारा जाहिर हमने पढ़ा, उसको जमीर में पढ़ेंगे। तो मुझे बताएं कि मफऊल की हालत एराबी हालत क्या होती है जी? मफऊल की एराबी हालत नसब होगी। तो अगर हम वहां जमायर इस्तेमाल करेंगे तो कौन से जमायर इस्तेमाल करेंगे जी? हुआ हुआ हम वाली, या फिर पूरे बताएं ना, नसब और जर वाला जमायर बताए, याद है किसी को? वो तो आप मुखातिब से शुरू कर रहे हैं, गायब का कौन बताएगा? गायब को गायब कर दिया आपने। हु हुमा हुम जी बोले, माशाल्लाह बोले, हु हुमा हुम। जंगली बन जाए थोड़ा, हाँ जंगली बन जाए, इंशाल्लाह समझ में आएगा। हाँ उसका, हाँ हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, या और ना। मैं लिख दे रहा हूं इंशाल्लाह, यहां पे देखें, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। एक बात मैंने बताया था कि या की डिमांड है हमेशा अपने सामने वाले को जेर करना, लेकिन फेल इसकी बात नहीं मानता है। तो लाजिमन आपको एक बात बता दूं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब ये फेल के साथ इस्तेमाल होगा तो इसकी शक्ल, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या था जी? दरमियान में कौन आया था? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दरमियान में क्या आता जी? इस या से पहले अगर कोई हर्फ इसकी बात ना माने और जेर ना है, तो उसको झगड़े को सॉल्व करने के लिए कौन आया था दरमियान में? बताया था मैंने, नहीं गलत? नून विकाया बताया था ना मैंने, नून आएगी इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, नून साहब आएंगे दरमियान को। तो लिहाजा जब कभी भी ये फेल के साथ इस्तेमाल होगा, जमीर का ये हिस्सा जब कभी फेल के साथ इस्तेमाल होगा, तो याद रख ले इसकी शक्ल हमेशा नी की सूरत में आएगी जी, नी की सूरत में आएगी। फेल के साथ कभी भी नजर आएगा ये आपको नी की सूरत में नजर आएगा। ये हमारे पास जमायर है और इसको मुत्तसिल जमायर कहते हैं, अटैच जमायर, यानी ये मिलकर आते हैं हमेशा। अब इसका इस्तेमाल मफऊल की जगह पर करेंगे ज़मीर की सूरत में। अब मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर कहता हूं कि नसरा ज़ैदन, तर्जुमा क्या है जी इसके? उसने जैद की मदद की। अब मैं जैद की जगह पर इसकी ज़मीर इस्तेमाल करूंगा ये, तो क्या तर्जुमा होगा जी?
नसरा, नसरा हु, नसरा हु, क्या तर्जुमा हुआ जी? उसने मदद की उसकी, उसने उसकी मदद की। अब मैं नसरा की गर्दान लिख रहा हूं यहां पर, उसको एक साथ, एक यहां से मिला करके उसको प्रैक्टिस करेंगे हम। नसरा की गर्दान कोई फटाफट बोले जी। नसरा, आस्ते आस्ते लिखूंगा मैं। नसरा, नसरा, नसरू, उसके बाद जी नसरत, उसके बाद नसरता, उसके बाद जी नसरना जी, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती। आहिस्ता आहिस्ता भाई, लिखना पड़ रहा है ना, बोलने में आसान है। नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, जी ये था हमारा फेल का गर्दान नसरा की। अब मैं कहता हूं इस हु को, यानी जैद को हु की जमीर में सबके साथ मदद करवाएं जी। कौन कराएगा जी? सबके साथ मदद करवाएं जी, सबके साथ मदद करवाएं फटाफट। कौन करवाएगा? नसरा को हु के साथ जोड़े, सबको पूरी गर्दान के साथ जोड़े। नसरा हु, तर्जुमा भी करे, तर्जुमा भी करे। नसरा हु का माना क्या होगा? तर्जुमा करते हैं। नसरा हु, उसने उसकी मदद की। नसरा हु, नसरा हु, उन दोनों ने उनसे की मदद की। नसरू हु, यहां एक चेंजेस आएगा, मैं बाद में बयान करूंगा। यहां पे एक चेंज आएगा, वो बाद में बयान करता हूं मैं। नसरता, नसरत हु, नसरत हु, उस मुअन्नस ने उसकी मदद की। नसरता हु, उस दो मुअन्नस ने उसकी मदद की। नसरना हु, उन सारे मुअन्नसों ने उसकी मदद की। नसरता हु, उस तूने उसकी मदद की। नहीं, मैंने कहा तूने मदद की। नसरा तुमा हु, नसरा तुमा हु, ये भी एक चेंजेस आएगा, वो मैं बाद में बयान करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, ये भी चेंजेस आएगा, मैं बाद में बयान करूंगा। नसर तुम हु, तुम दोनों ने उसकी मदद की। नसरती हु, तू मुअन्नस ने उसकी मदद की। नसर तुमा हु, तुम दोनों मुअन्नस ने उसकी मदद की। नसर तुन्ना हु, तुम सारे मुअन्नसों ने उसकी मदद की। नसर तू हु, मैंने उसकी मदद की। नसर ना हु, हम सब ने उसकी मदद की। जबरदस्त। अब मैं कुछ जुमले बोल रहा हूं आपको, अब करना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस। अब जैसे कि हु को इसके सारे के साथ जोड़ा, अपने हुमा को भी सारे के साथ जोड़ना है, ठीक है ना? हुमा को भी सारे के साथ जोड़ना है। लेकिन इस हु का या इन तमाम जमायर का इसके साथ, और एक आएगा आपको इसके साथ, इस दो के साथ एक चेंजेस आएगा जी। वो चेंजेस क्या आएगा मैं लास्ट में बयान करूंगा। पहले मैं आपको कुछ जुमला बोलता हूं, उसको जुमले को अरबी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। मैं कहता हूं उन दोनों ने उन दो की मदद की। तर्जुमा करिए। उन दोनों ने उन दोनों की मदद की। आराम से ठंडे दिमाग से करें। पहले फेल और फाइल बनाए। क्या है जी? उन दोनों ने मदद की। कौन सा जगह इस्तेमाल होगा जी? उन दोनों ने मदद की जी, माशाल्लाह। नसरा, नसरा, उन दोनों की मदद की। कहां से उठाई जी? हुमा, नसरा हुमा। जबरदस्त। क्या तर्जुमा हुआ जी? उन दोनों ने उसकी मदद, उन दोनों की मदद की। जबरदस्त। अच्छा, मैं कहता हूं कि मैंने तुम दोनों की मदद की, और तुम दोनों से मुराद मुजक्कर है जी। तुम दोनों से मुराद मुजक्कर है। मैंने तुम दोनों की मदद की जी। तर्जुमा करें। पहले मैं मदद करता हूं, नजर आ जाऊं। तुम दोनों की, उस दोनों की नहीं, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। हाँ, तो कुमा का सीगा इस्तेमाल होगा जी। नसर तू कुमा, तो ये मिल जाएगा जी। नसर तू कुमा, मैंने तुम दोनों की मदद की। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत।
अच्छा, उस मुअन्नस ने मेरी मदद की, उस मुअन्नस ने मेरी मदद की, उस मुअन्नस ने मेरी मदद की जी। नसरत मेरी मदद की, नसरतनी, 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 उस मुअन्नस ने मेरी मदद की, नसरतनी। मैंने बताया ना कि या की जमीर जब हमारे साथ मुत्तसिल ज़मायर जब फेल के साथ शुरू होगा, ठीक है ना, तो वो हमेशा नी की सूरत में नजर आएगा, नसरतनी। उन सारे मुअन्नस ने हम सब की मदद, उसने मेरी मदद की, ठीक है। जुमला बना जी, आप बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। उस दो मुअन्नस ने उन सारे मर्दों की मदद की, उस दो मुअन्नस ने उन सारे मर्दों की मदद की जी। बनाए जी, जगह नहीं है, रुके। उन दो मुअन्नस ने, उन दो मुअन्नस ने की जी, नसरता, उन दो मुअन्नस ने उन सब की मदद की, तो ये इसके साथ मिल जाएगा जी। नसरता हम, नसरता हम, सॉरी नहीं, माजरत चाह रहा हूं, अलिफ है ना इसमें, तो ये जुड़ेगा नहीं, ये अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा। अलिफ को हटाना नहीं ना, तो फिर तो एक आ जाएगा ना। नसरता हम, नसरता हम, उस दो मुअन्नस ने उन सब की मदद की। जबरदस्त। मैं कहता हूं उन सब मर्दों ने मेरी मदद की, उन सब मर्दों ने मेरी मदद की। बनाए जी फटाफट। अच्छा, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, क्योंकि उसमें चेंजेस, एक चेंज है, वो आप बाद में करूंगा मैं आपको, क्योंकि उसकी जरूरत है, आप प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे उन सारे मुअन्नस ने मेरी मदद की, ये बना दे आप। उन सारे मुअन्नस ने मेरी मदद की, नसरनानी, नसरनानी। अच्छा, ये जब दो मिल जाएंगे ना, अच्छा मिलना नहीं है, क्योंकि ऊपर एक जबर एक नीचे जेर है, नसरनानी, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ रहेगा, नसरनानी, ठीक है ना। तो कम से कम इतना समझ में आएगा। अब इसको प्रैक्टिस करना आपको, जाहिर बात है जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक की तरफ। ये दो, ये नसरू है और नसर तुम है, ये जो दो है ना, ये जब जमायर के साथ इस्तेमाल होंगे ना, पहले इसको लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, नसरू है ना, नसरू। तो मैं कहता है कि उन सब ने उसकी मदद की, उन सब ने उसकी मदद की, तो क्या होगा जी हमारे पास, नसरा, नसरू, ठीक है ना जी। कायदे के मुताबिक यही होगा ना जी, मदद की। लेकिन अरब ऐसा नहीं करता। अरब क्या करता है, ये जो अलिफ एक्स्ट्रा हमने उस वक्त ऐड किया था, इसको हटा देता है वो, और वो ऐसे लिखता है नसरू, बस। ये फर्क करेगा। ये सेगा जब मुत्तसिल जमायर के साथ इस्तेमाल होगा, यानी मफूल उसका जमीर बनकर आएगा, तो हमेशा याद रखे कि इन नसरू से अलिफ हट जाएगा जी, नसरू से अलिफ हट जाएगा। दूसरा जी, नसर तुम, क्या माना इसका जी, तुम सबने मदद किया, तुम सबने मदद किया, मर्द के मुतालिक बात हो रही है। नसर तुम, नसर तुम जब जमायर के साथ इस्तेमाल होगा, और मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूं कि तुम सबने उसकी मदद की, क्या तर्जुमा करेंगे जी हम, तुम सबने उसकी मदद की। एक मिनट रुकिए, ये जी नसर तुम हूं, ये आ रहा ना जी, कायदे के मुताबिक एकदम सही है आप। लेकिन अरब ऐसा नहीं करता है। अरब क्या करता है, इस यहां पर वो एक वाव को ऐड कर देता है, और उसके पीछे मुनासिब हरकत को, पेश को डाल देता, नसर तुमू हूं कर देता वो, नसर तुमू हूं। इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कुरान मजीद के साथ। एक सूरह इब्राहिम की आयत नंबर है 34, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वह आताकुम, और उसने अता किया तुमको। समझ में आ रहा है जी, आताकुम, उसने अता किया कुम, वह आताकुम, उसने अता किया तुमको। तर्जुमा कर पा रहे हैं आप लोग,
मिन कुल्ली, उन तमाम में से, मिन कुल्ली, उन तमाम में से, उन तमाम में से, उसने अता किया तुमको उन तमाम में से, माँ, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, लफ्ज सआला सवाल करने के बारे में आता है। सआला, तो सआला की गर्दन आप पढ़ सकते हैं, सअलतुमूहु, देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, सअलतुमू, सअलतुम का माना क्या हो गया जी? मांगने के माने में आता है, दुआ करने के मांगने में, इल्तिजा करने के मांगने में, दुआ तमाम चीजों के में आता है, सवाल करने के माने भी आता है, मांगने के बारे में आता है। तो सआला की गर्दान अगर करेंगे तो सअलतुम का माना क्या हो जी? कि तुम सबने मांगा, तुम सबने मांगा, तुम सबने मांगा किससे? हु, उससे। हु की ज़मीर किसके तरफ जा रही है? अल्लाह के जानिब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वह आताअकुम, उसने तुमको अता किया, मिन कुल्ली, हर उन चीजों में से, माँ, जिसको, यानी जो के माने में आता है, हरफ मौसूल है ये, सअलतुमूहु, देखिए वो तुमूहु कर दिया, वो तुम था यहां पे, असल में ये था, ऐसे था, ये था, लेकिन सअलतुमू फू कर दिया। ये अरब का कायदा, उसकी वजह ये ना कि देखना अपने आप खुद रुक जाएंगे, यहाँ पे सअलतुमहु, यहाँ रुक रहे हैं, तो अरब रुकता नहीं हो, मिला कर पड़ता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अगर तास दो साकिन आपस में मिल जाए, दो हरूफ, तो वो क्या करता है जी? जेर देकर मिलाता है। तो यहाँ वो एक हर्फ के यहाँ पे पेश को देकर के और वाव के देकर के मिला के पड़ता है, सअलतुमूहु नहीं होगा, सअलतुमूहु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन था, जैसे कि नसर तुमूहु होगा, नसर तुम हूं नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि नसर तुमूहु होगा। और ये कायदा सिर्फ याद रखिए, ये गर्दान नंबर 3 और ये 6, 7, 8, 9, 9 नंबर गर्दान के अंदर, ये 3 और 9, 3 और 9, ये दो गर्दान के अंदर बस एक चेंजेस, ये आसान है, ये आसान इस वजह से कि सिर्फ इसमें अलिफ हटेगा और इसमें मीम के साथ वाव का इजाफा हो जाएगा, पेश के साथ मीम पर पेश देकर के वाव का इजाफा कर देंगे। ये था हमारा क्लास। बस अब एक दो ये ले लेते हैं, क्या नाम है, कुछ क्या बोलते हैं उसको जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुरान मजीद में जो हमने अभी पढ़ा है। कुरान मजीद से हमने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आदम और हवा का किस्सा, आदम और इब्लीस का किस्सा किस किस को मालूम है जी? सबको मालूम है? मालूम है सबको? जी जी मालूम है ना, माशाल्लाह, जबरदस्त मालूम है। अच्छा, जब उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को हुक्म, यानी फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुद, कि सजदा करो, तो फसजदू इल्ला इब्लीस, कुरान मजीद में आता है कि सबने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। उसने एक आर्गुमेंट रखा, क्या आर्गुमेंट रखा जी, किस वजह से सजदा नहीं करा? तो उसने कहा, उसने एक जुमला फेलिया कहा, उसने कहा, गौर करें, नहीं पहले 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 कुछ और कहा, पहले उसने ये कहा कि अना भी खैर, अना खैरुन, मैं बेहतर हूं। हाँ, किससे बेहतर हूं जी? अना खैरुम मिनहुम, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं। ये क्या है जी? मुब्तदा। तो ये क्या है जी? खबर है। हाँ, नकरा में क्यों है? नकरा क्यों है जी? खैरुन नकरा क्यों है? जो बता दी उसको चॉकलेट का तोहफा बता दे, बता रहा फटाफट। खैरुन खबर, जो खैरुन जो है वो नकरा क्यों है? इतना आसान चीजें नहीं मालूम, आप लोग पीछे चीज भूलते जा रहे हो। खैरुन, अभी तो आपने कहा कि खबर है ये, तो नकरा क्यों, ये बता दे, बस बात खत्म। हाँ, तो बस बात नहीं, तो इतना सोचने की क्या, खबर नकरा आता है, हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया में, मैं बोला ना जुमला इस्मिया आते जाएगा। तो खबर जो है वो नकरा होता है, इसलिए खैरुन नकरा आया हुआ, अना खैरुम मिनहु। अच्छा, ये मिलाकर पढ़ते हैं, कुरान मजीद में यहाँ पे शद दिया हुआ रहता, ठीक है ना, अना खैरुम मिनहु, अना खैरुम मिनहु, मैं उससे बेहतर हूं। उसके बाद उसने कहा खलकतनी, तूने पैदा किया, किसको? मुझे। खलकतनी, इसका तर्जुमा समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो ना? खलकता, तूने पैदा किया, नी, मुझको, किससे? मिन नारिन,
मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया। और वहां खलकताहू, तूने उसको पैदा किया। किसे जी? उसको किसके तरफ जा रही है इशारा? खलकतहू, खलकताहू, हाँ, मिन 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 तीन। देखिए जो हमने पढ़ा वही चीज है कि नहीं? यहां पर क्या समझ में नहीं आया? यहाँ पे बताया आप। अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि कुरान मजीद की आयत तर्जुमा खुद कर पा रहे हो। अना खैरु मिनहु, ये जुमला इस्मिया है। दूसरा जुमला फेलिया आ रहा है, खलकतनी मिन नारिन, कि तूने मुझे पैदा किया आग से। खलकताहू, तूने उसको पैदा किया मिन तीनिन, तूने एक हकीर से मिट्टी से पैदा उसको किया, लिहाजा मैं उससे बेहतर हूं। यही आर्ग्यूमेंट था ना उसका, तकब्बुर, कि मैं बेहतर हूं। यही चीजें बाज हमारे इंसानों के अंदर भी मौजूद है कि हम जब क्या करते हैं कि हम उससे बेहतर बेहतर के सीगा में इस्तेमाल करते हैं और फिर ऐसा मामला होता है कि फिर हक बात से इनार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि बाद साहबा अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छे चीजों लिबास पहनने के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अंदर राय के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर हुआ ना तो वो कभी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। सहाबा चीजों को पहचानते और पहचानने की कोशिश करने में हर वक्त जिंदगी गुजारते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात बयान करते ना तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद हुआ करता था और बहुत बड़ी बात छिपा हुआ करती थी। तो सहाबा तुरंत सवाल करते थे कि अल्लाह के रसूल, बाज मकाम पर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, तो क्या ये भी तकब्बुर है? वो बचने की कोशिश करते थे। हमारा मामला ये है कि हम उसको कैसे बचाएं, उससे कैसे बचे, ये मामला देखते हैं, यानी कि जो फरमान नबवी है उससे बचे कैसे। और सहाबा क्या करते थे कि फरमान नबवी जो है उसमें जिस चीज की वईद आई है उससे कैसे बचे, ये मामला था हमारा, ये सॉरी मामला था सहाबा का। तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्या ये भी तकब्बुर है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तकब्बुर ये नहीं कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, अल्लाह जमीलुन, अल्लाह खूबसूरत है, युहिब्बु जमालन, और वो खूबसूरती को पसंद करता है। बल्कि तकब्बुर तो ये है कि तुम हक बात से इनहार करो। और हक बात से इनहार कब होता है जी? जब इंसान अपने अंदर अना पैदा कर ले कि नहीं भाई मैं ही सही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं सही है, मैं हर वक्त सही रहता हूं। ये चीजों से बचा करे। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा तकब्बुर ये, पहला हक तकब्बुर तो ये कि हक बात से इनहार करना है, और ये तकब्बुर ही था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हुक्म दिया तो उस तकब्बुर की बुनियाद पर उस चीज को इनकार किया, हक बात को इनकार किया ना। हक अल्लाह का हुक्म से बढ़कर हक क्या हो सकता है, उसने इस चीज का इनकार किया। और दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरा तकब्बुर यह है कि तुम दूसरों को हकीर समझो। अगर तुमने अच्छे कपड़े पहने लेकिन दूसरे को यह समझ रहे यार ये तो गरीब इंसान है, तो अच्छे कपड़े नहीं पहना, तो ये भी एक तकब्बुर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इन तकब्बुरात से बचाए, महफूज करे। कोई सवाल अगर आपका है तो ज़हन में फटाफट कर ले, फिर इंशाल्लाह इख्तिताम कर दे इसका। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा वही तरीकाकार अपनाएंगे जो हमने जुमला इस्मिया में किया था। कि जुमला इस्मिया के आखिर में जाकर के हमने देखा था कि जब मुक्तदा और खबर की मुकाम पर मुख्तलिफ मुरक्कबात का इस्तेमाल किए थे, उसी तरीके से मफऊल की जगह पर मुख्तलिफ मुरक्कबात का इस्तेमाल करेंगे, मुरक्कबात नाकिसात का इस्तेमाल करेंगे। फाइला, अच्छा वो चेंजेस की बात कर रहे हैं। हाँ वो दो ही चेंजेस आएगा, नसरा, सॉरी नसरू, नसर तुम, नसर तुम। कौन सा बताएं जरा, याद करवाएं, कौन सा वाला बताएं। अच्छा वो उस, हाँ वो उस, हाँ मैं बता रहा हूं, वो ये था कि मिसाल के तौर पर दखला का ताल्लुक लिया था मैंने, उसी को लेके पसंद बता रहा हूं मैं, क्लियर कर लूं। देखूं अब ये भी है और ये भी है, यानी ये दो साकिन मिल रहा है तो वो जेर रेगर पढ़ते, यही है ना, दखलतिल मुअल्लिमतु, यही है ना। ये चेंजेस है, ठीक है। नहीं मैं वो ये चेंजेस तो इसके साथ है ना, ये चेंजेस इसके साथ, ये एक अलग चीज है। लेकिन यहां जो चेंजेस मैंने बताया है वो जमायर के साथ है। वो जो मुत्तसिल जमायर के साथ जो चेंजेस लाएगा वो बस दो समय लगाए, एक तो अलिफ को हटा देगा, तीसरा सिगा इस्तेमाल करेगा तो, और नौवां सिगा इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ वाव को डाल के उससे मुनासिब हरकत को पेश लगा करके वो पढ़ देता है। इसके अलावा कोई सवाल? आदिल भाई बोलिए क्या बोल रहे हैं? आएगा अभी, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी जाएगा, अभी बहुत टाइम है। अभी पहले मुदारे पढ़ाएंगे उसके बाद मजहूल पढ़ाएंगे।
واللہ عالم نیٹ ورک ایشو کا وجہ سے ہو رہا ہے یہ. جی کوئی اور سوال؟ جی کوئی اور سوال فٹافٹ پوچھ لیتے کہ پھر بعد میں ایسے کہیں گے پھر سوچنا شروع کر دیا, کسی کا پنا پلٹنے کا آواز سننے میں آ گیا, پھر مسئلہ ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی